who's head of gastroenterology department, Sheikh Zayed Hospital, Lahore, and Dr. Bushra Ali, who effectively heads GI department of Fatah Memorial Hospital nowadays. Thank you very much, Dr. Bushra and Dr. Kashi, for being with us. And also to our participants who have joined. I can see Dr. Sultan Chandior, Dr. Farooq is from Habzabad, Dr. Jamna Das Malani, uh, we have Mehak Junaid and some of our Dr. Hasanul Haq and some of our PARSA ACO members here. Dr. Oj is here also. So I think we should start. Uzair, who is going to present the case? Dr. Oj is going to present the question. मेरे ख्याल में हम शुरू करते हैं क्योंकि देयर विल बी सम मोर आई एम एक्सपेक्टिंग मोर पीपल टू जॉइन इन तो सर हमारा टाइम बच जाएगा विल बी एबल टू फिनिश इन टाइम जी औज आप काइंडली केस प्रेजेंट करेंगे स्क्रीन शेयर और Yes, sir. This case includes a 60-year-old male, history of chronic hepatitis B, is admitted to ICU in grade 2 encephalopathy, no history of melena or hematemesis, previous history of treatment with Edifovir in 2010, no follow-up after that. On examination, abdomen is soft, non-tender, chest is bilaterally clear. Family history was not significant. His investigations included HB was 9.8, TLC was not available, platelets 70, blood urea nitrogen was 34, CRET was 1.5, bilirubin 1.4, ALT 90, AST 153, alkaline phosphatase and GGT was not available, albumin was 3.4, INR was 1.3, AFP not available. His viral serology included HBe antigen was positive, anti-HBe was positive, anti-HTV was negative, anti-HIV was negative, and anti-HCV was also negative. HBs antigen was positive, and his HPV DNA by PCR is as given. CTP was calculated and it was 8B. His ultrasound abdomen showed chronic liver disease with splenomegaly and mild to moderate ascites. The questions are, how will we manage this patient? And does this patient need any further investigations? And should we start antiviral treatment in this patient or wait till ascites is resolved? And what treatment options do we have? Thank you. Thank you, Oj. Let me summarize this case. This is a case, a 60 years old gentleman with hepatitis B cirrhosis, and it is decompensated cirrhosis. There is history of encephalopathy, and patient also has ascites. And about 10 years back, he gives history of treatment with Adafovir, but then there has not been any follow-up. And as we can see the current investigation, he is anemic. There is thrombocytopenia. Creatinine is 1.5. Bilirubin is 1.4. Albumin 3.4. E antigen positive. E antibody negative. INR 1.3. And viral load is around 700,000, close to 800,000 units per ml. There is no alpha fetoprotein, and ultrasound shows moderate ascites. तो आई थिंक मैनेजमेंट पार्ट पे तो डॉक्टर काशिफ मैं आपसे शुरू करूंगा आप इसको कैसे लेते हैं प्रैक्टिस में मेरे ख्याल में ये हम फेयरली कॉमन देखते हैं ऐसे मरीज हु आर लॉस्ट टू फॉलो अप एंड देन दे प्रेजेंट विद डीकंपनसेशन एंड an elderly gentleman, how are we going to proceed with this case in an OPD practice or in our hospital practice? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू असद। दिस इज़ अ वेरी गुड केस। एक्चुअली ये केसेस होते हैं जहाँ पे आपने उस टाइम पे फैसला लेना है, और अगर जैसे इसमें आ गया जी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव एंड यू जंप फॉर के जी मैं इसकी ट्रीटमेंट करूँगा, दीज असल में अगर आप उस थोड़ा सा डॉक्टर जो ऊपर दिखा दीजिएगा, हिस्ट्री पे थोड़ा सा ले लेते हैं कि पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट किया है इंसेफेलोपैथी के साथ, एंड देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ मेलिना और मेटामेसिस, फॉलो अप नहीं था, ठीक है जी।
इसमें मेन चीज ये है कि उसको ग्रेड 2 इंसेफलोपैथी क्यों है, सबसे पहली बात ये है। अब अगर डोमेन को हम देखते हैं, सॉफ्ट नॉन टेंडर उन्होंने दे दिया, चेस्ट क्लियर है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशंस में लो एचबी, लो प्लेटलेट, सो हमें यहीं से पता लगता है कि ये सिरोटिक हैं। अल्ट्रासाउंड भी उसको फेवर कर रही है। बाकी जब हम इन्वेस्टिगेशंस देखते हैं, बीयूएन क्रेटिनिन स्लाइटली रेज्ड है, बिलिरुबिन स्लाइटली रेज्ड, ALT/AST रेशियो रिवर्स हुई है। ट्रिक इज देयर कि TLC नहीं आई है हमारे पास, WBC काउंट, और इसके अलावा अल्कलाइन फास्फेटेज एंड गामा GT नहीं आए। एल्ब्यूमिन बॉर्डरलाइन लो है। इसमें एक एंटीबॉडी पॉजिटिव का मुझे थोड़ा सा हो रहा था, ई एंटीजन भी पॉजिटिव, एंटीबॉडी भी पॉजिटिव है, शायद वो अगर लिखने में हो गया तो उस हवाले से है, दोनों चीजें पॉजिटिव में। अब इसमें अगर मैं हमारे पास ये पेशेंट आएगा, ऑब्वियसली एक अगर इमरजेंसी में आएगा, तो हम इसकी फिर इंसेफलोपैथी को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। और ट्रीट करने में सबसे पहली बात ये है कि हम, दूसरा सवाल भी जैसे बीच में इंक्लूड हो जाता है कि कॉज ऑफ इंसेफलोपैथी ढूंढ। इस पेशेंट को अगर मैं देखता हूँ 60 इयर्स ऑफ एज और इसमें हो गई इंसेफलोपैथी की कास्ट, WBC काउंट आपने नहीं दी है, हो सकता है इसको इन्फेक्शन हो। इन्फेक्शन चूंकि अल्ट्रासाउंड पे एसाइटिस आ रहा है, SBP को रूल आउट करना सबसे जरूरी होता है इन पेशेंट्स के अंदर, कि हम उसके लिए जो है कोई डायग्नोस्टिक टैप करके हम उसे देखें। सेकंड थिंग जो थी वो, उसमें अगर अल्कलाइन फॉस्फेट गामा GT नहीं है, ये एक इंडिकेटर होता है मे बी पेशेंट इज अल्कोहलिक, उसने अल्कोहल लिया जिसकी वजह से उसको अक्यूट डीकंपनसेशन और सम अदर काजेज जिसकी वजह से अक्यूट डीकंपनसेशन हुई हो, तो वो चीज है। तो अगर मुझसे आप पूछेंगे, सबसे पहले तो मैंने इसकी इंसेफलोपैथी को ट्रीट करना है। कैसे ट्रीट करता है वो उसके अपने PSC के फोटोसिस्टमैटिक इंसेफलोपैथी के जो जो लाइंस है, हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, तो मैं उसको करूंगा। और उसमें ही दूसरे सवाल का जवाब भी आ जाता है कि उसके लिए मैं डायग्नोस्टिक एस्थेटिक टैप भी करना चाहूंगा, मैं इनका जो है वो बाकी WBC काउंट इसमें भी चेक करना चाहूंगा, अल्कलाइन फॉस्फेट गामा GT को भी देखना चाहूंगा, और उसी के साथ साथ फिर जो है मैं इस पे ड्रग हिस्ट्री और अल्कोहल की हिस्ट्री, ये चीजें जो है मैं इसमें लूंगा। डॉक्टर असद। थैंक यू, थैंक यू काशिफ। तो एनकेफलोपैथी ट्रीटमेंट इज इम्पॉर्टेंट, और डॉक्टर काशिफ ने जैसे कहा कि अल्कोहल की हिस्ट्री, क्योंकि हमारे पास डेटा पूरा नहीं है, यूजुअली ये चीज़ें मिस नहीं होती। आई डोंट नो हाउ दे आर मिस्ड, बट समटाइम्स वी डू रिसीव्ड केस लाइक दिस, और समटाइम्स वो जिस बंदे ने रिपोर्ट सेंटर की होती है उसने वो कहीं पे मिस कर दिया होता है। और इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अल्कोहल की हिस्ट्री को रूल आउट करें। हमारे पास अल्फा फीटोप्रोटीन भी नहीं है, दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो। और SBP, डायग्नोस्टिक टैप और SPP, क्योंकि ये सारा कुछ जुड़ा हुआ है इनिशियल मैनेजमेंट, जो कि हमने फौरी तौर पर इस पेशेंट की बेहतरी के लिए करना है। बुशरा, कमिंग टू एंटीवायरल ट्रीटमेंट, इस मरीज में आप कितनी अर्जेंसी फील करेंगी? वी सपोज के इसको ट्रीट किया गया इन्फेक्शन की लाइंस पे और एनकेफलोपैथी से ही कम्स आउट ऑफ इट, और इन 2 to 5 days पेशेंट हॉस्पिटल में बेहतर हो गया, वी आर प्लानिंग द डिस्चार्ज। अब इस स्टेज पर हाउ वुड यू टेक एंटीवायरल ट्रीटमेंट फॉर हेपेटाइटिस बी हेयर, और आप किस तरह से पेशेंट को काउंसल करेंगी और गाइड करेंगी, और ड्रग्स की ऑप्शन क्या होगी आपके पास? जी थैंक यू डॉक्टर असद। जो इस वक्त अवेलेबल डाटा है उसमें तो क्रिएटिनिन है 1.5। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं कि SBP might have precipitated hepatic encephalopathy and it might be the cause behind sepsis. We know that SBP can also lead to hepatorenal syndrome. तो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन हेपेटोरेनल सिंड्रोम रूल आउट करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली इस पेशेंट को हमें फिर ट्रीट भी करना पड़ेगा इफ HRS इज डायग्नोज्ड। आप कह रहे हैं कि ठीक है पेशेंट मैनेज हो गए, घर जाने के लिए तैयार हो गए, तो फिर तो अब हमारे पास आसान ऑप्शन है ना इस पेशेंट के लिए। हम टेनोफोविर आलाफिनामाइड शुरू कर सकते हैं बिकॉज दैट कैन बी गिवन एट ए EGFR ऑफ लेस दैन 30। दूसरा ये कि चूंकि पेशेंट आसानी से इसलिए दे सकते हैं क्योंकि आई एम अज्यूमिंग दैट हिज क्रिएटिनिन हैज आल्सो गॉन डाउन, then he will not have the effect of hepatotoxicity, the nephrotoxicity and the bone toxicity that TDF has. तो tenofovir alafenamide would be a better option. Initially था कि शायद decompensated cirrhotics में नहीं देना चाहिए, लेकिन अब इस किस्म का डाटा तो नहीं है। कुछ स्टडीज़ हैं जिसमें उन्होंने
decompensated cirrhotics को भी दिया and they have done well. दूसरा ये है कि I agree that we need to rule out an additional insult over here because the synthetic function of the liver appears to be fine. Albumin 3.4, INR 1.3 इस पर ascites का हो जाना और grade 2 encephalopathy का हो जाना, other causes also need to be ruled out. So I agree SAG भी calculate होना चाहिए of the ascitic fluid and culture sensitivity तो खैर SBP के लिए होगा. Counseling definitely पेशेंट का पहले भी एक हिस्ट्री है कि एडेफोविर वो ले रहे थे, फिर उन्होंने छोड़ दी लेनी, तो अब उनको प्रोब करना पड़ेगा कि क्या वजूहात थी जो उन्होंने दवा छोड़ दी. Was it a financial burden? Was he tired of taking the medication on a daily basis? Was he told that he will not get better even if he continues to take medication, so he just left it? जिस तरह हमारे पास पेशेंट्स आते ही हैं, कुछ कहते हैं कि जी हमें उन्होंने कहा कि आपको सारी उम्र खानी पड़ेगी इसलिए हमने छोड़ दी. तो ये प्रोब करना पड़ेगा और फिर काउंसल भी करना पड़ेगा because he will continue to decompensate like this unless and until he takes proper medication. तो decompensation और वजूहात भी हो सकती है ना. He might end up with encephalopathy again or with an upper GI bleed this time. Plus, if SBP has been managed and he still has ascites, which he presumably will have, he can be started on diuretics also. So, और तीसरी चीज, Thank you. हर हेपेटाइटिस बी के पेशेंट के लिए ये जरूरी है कि उसकी फैमिली की स्क्रीनिंग हुई हो और उनकी वैक्सीनेशन हुई हो, क्लोज कॉन्टैक्ट्स के जिनका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव हो. ये पेशेंट हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, हिज वाइफ इज एट रिस्क, हिज चिल्ड्रन आर आल्सो एट रिस्क, तो उनको देखने की जरूरत है. थैंक यू. डॉक्टर काशिफ, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे जिस तरह हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है पंजाब का, तो उसमें टैफ तो अवेलेबल नहीं है. तो अगर टैफ अवेलेबल नहीं है तो हाउ कंफर्टेबल, क्योंकि पेशेंट समटाइम्स ये बात करते हैं कि जब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारे पास TDF की ऑप्शन होती है जो कि हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम से भी मिल जाती है. तो अगर क्रिएटिनिन सेटल हो जाता है तो हाउ कंफर्टेबल वुड बी स्टार्टिंग TDF इन दिस पेशेंट, एंड इफ यू डू तो मॉनिटरिंग आप किस तरह से रखोगे इनकी? जी काशिफ. में बड़ा अच्छा सवाल है. इसका बेसिकली यही है कि हमारे पास TDF है इस वक्त जो अवेलेबल है, उसमें अगर सपोजिटली क्रिएटिनिन इनकी ठीक हो जाती है तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी आसानी है कि हम इनको टैफ पे उस पे TDF पे डाल के और उसके हवाले से जो है हम इनको वो कर सकते हैं कि इनको दी जाए, और उसमें जो भी इनकी है उसकी मॉनिटरिंग हम करते हैं. यूजुअली 3 to 6 मंथ्स के ऊपर इनकी मॉनिटरिंग करते हैं कि क्रिएटिनिन देखते रहें, बाकी वो जो दूसरे साइड इफेक्ट्स हैं वो भी देखें, कम होते हैं इनमें. और दूसरी ये है कि EGFR कैलकुलेट करना है. इट्स वेरी इजी कि EGFR आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेट कर लें, उसके मुताबिक इसकी डोजेज एडजस्ट हो जाती है कि 300 वंस डेली देनी है, 300 अल्टरनेट डे पे देनी है या एवरी थर्ड डे देनी है. उस हिसाब से अगर आपके पास पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता तो आप इवन विद अगर स्लाइटली रेज क्रिएटिनिन एंड GFR जो है इनकी रेज लो होगी तो उसमें भी आप इनको इस मेडिसिन पे रख सकते हैं. और सेकेंडली जो हमारे पास उस हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है, एंटाकाविर आ रही है. एंटाकाविर जो है ज्यादा जो है वो किडनी फ्रेंडली है कि उसमें हमें इतनी ज्यादा डोज एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती. ऑब्वियसली उसमें भी करनी होती है अगर क्रिएटिनिन ज्यादा हो. तो हम अगर इसको देंगे तो हम इसके मेनली जो है इसकी पहले मैं अगर दूं तो EGFR मैं कैलकुलेट करूंगा, और कैलकुलेट करने के बाद जो है मैं इनको अपना ये इस पे डाल के और उसको जो है रेगुलर फॉलोअप पे जो है वो मैं रख सकता हूँ उस हवाले से जो. तो ये बेसिकली हमारा जो मेन है वो इसी. थैंक यू डॉक्टर काशिफ. बुशरा, मैं सिर्फ डबल चेक करना चाह रहा हूँ कि इस मरीज में आप देख रहे हैं कि E एंटीजन पॉजिटिव, E एंटीबॉडी पॉजिटिव, इसमें आप E एंटीजन जीरो कन्वर्जन पे तो दवाई नहीं बंद करना चाहेंगे 1 साल बाद, 1.5 साल बाद? लेट्स सपोज ही डज वेल, क्या करना चाहेंगी आप? नहीं, फॉर अ सेरोटिक पेशेंट देयर इज वेरी लिटिल रूम ऑफ स्टॉपिंग मेडिकेशन. इनकी तो फॉर लाइफ चलेगी ट्रीटमेंट.
वो जो एंड पॉइंट्स हैं वो सिरोटिक पेशेंट्स के लिए तो अप्लाई कम ही किया जाता है, वो तो नॉन सिरोटिक के लिए अप्लाई करते हैं ना कि सीरो कन्वर्जन हो जाए एंड देन बी हेपेटाइटिस बी का लॉस हो, सीरो कन्वर्जन हो, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन लॉस, फिर एंटी HBS, वो सब क्राइटेरिया तो नॉन सिरोटिक के लिए। सिरोटिक्स के लिए तो यू डोंट वांट टू एंड अप विद ए फ्लेयर एंड ही माइट एंड अप विद ए एक्यूट इनफैक्ट फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर। डॉक्टर काशिफ से भी पूछ लें। That's what I think. Ji Kashif, I think we are pretty clear. The reason why I asked this question is that this is going to be a lifelong treatment. Hopefully, Yes, this patient totally will do very agree. well, and it will. क्योंकि इस वक्त जो चल रही है वो सम टाइम तो वो कहते हैं जिसका सरफेस एंटीजन पॉजिटिव एंड ही और शी इज सेरोटिक, पुट देम ऑन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग फॉर लाइफ टाइम बिकॉज वायरल लोड सप्रेस होगा। इवन अगर आपको नॉट डिटेक्टेड मिलता है सम टाइम जैसे कि आप उसमें भी दें। ये जो है कि इसको वायरल लोड भी वेरी हाई आ रहा है, उसके बाद इनका जो है एसाइटिस भी है, डीकम्पनसेशन भी है, और इन्होंने पहले डिफोविर लिया। डिफोविर पे एक मसला था कि उसमें कुछ डॉक्टर्स की तरफ से भी होता है, उस जमाने में रिकमेंडेशंस नहीं थी, कोई 1 साल खिलाता था, कोई 2 साल खिलाता था, खुद बंद कर देते थे। और यूजुअली जब वो PCR नेगेटिव हुआ, चले गए पेशेंट, दोबारा वो जहमत ही नहीं करते थे वो भी दिखाने को, ना उनके डॉक्टर उनको बुलवाते थे कि आप अपने फॉलो अप पर आए। अब जरा ज्यादा बेहतर अवेयरनेस हुई है तो लोग इस चीज पे आ रहे हैं। तो मैं टोटली एग्री करूंगा डॉक्टर बुशरा के साथ और आपके साथ कि इससे हमें बंद नहीं करना फिर दोबारा। ठीक है, थैंक यू। वी हैव अबाउट 5 मिनट। असद, एक चीज और कहूंगा, जो साइटिस वाली आपने बात की, साइटिस इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। उनकी एंसेफेलोपैथी और बाकी चीजें कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकती है कि इस टाइम पे अगर हम ना स्टार्ट करें, कर भी सकते हैं, ना करें, जब पेशेंट ठीक होगा। तो साइटिस इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये मैसेज हम देना चाहेंगे कि अगर साइटिस भी है लेकिन लिवर फंक्शन जैसे उसके प्रिजर्व हुए हैं, तो इन पेशेंट्स के अंदर आप जो है बड़ी आसानी से जो है न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स दे सकते हैं। We are now open to questions. अगर कोई भी सवाल करना चाहे, प्लीज आपके पास रेज हैंड ऑप्शन है, या you can unmute yourself, and we have about 5 minutes to discuss hepatitis B further. Then we'll move on to next case. कोई question? Anybody? सर मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा डॉक्टर फारूक प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। ओके जी, डॉक्टर फारूक कंसल्टेंट फिजिशियन आपसाबाद। इसमें सर जिस तरह हमने देख लिया एक दफा इनका एंटी-HDV नेगेटिव है, तो इन पेशेंट्स को क्या हमें फॉलो अप में भी एवरी 6 मंथ्स या एवरी ईयर इनका HDV करवाना चाहिए, ये देखने के लिए कि क्या अब जो है ये कैरी कर लिया है इन्होंने डी या नहीं किया? जी काशिफ। डॉक्टर काशिफ आप जवाब देंगे? डॉक्टर बुशरा आप जवाब दे दें अगर आप। काशिफ जी क्वेश्चन यही है ना कि क्या सिरोटिक पेशेंट जिसको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसकी एवरी 6 मंथ्स हम उनका हेपेटाइटिस बी DNA चेक करेंगे कि नहीं, यही है ना क्वेश्चन। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड। नो मैडम, इसमें मेरा क्वेश्चन था कि इसमें क्या हम इनका डेल्टा वायरस दोबारा रिपीट करवाएंगे, जो बी वाले पेशेंट्स हैं चाहे सिरोटिक हैं नॉन सिरोटिक हैं, ये देखने के लिए कि क्या अब इन्होंने डेल्टा वायरस कैरी कर लिया है कि नहीं किया? अच्छा सॉरी, बेसिकली हेपेटाइटिस डी आप इन पेशेंट का 2 सूरतों में चेक करेंगे। एक, द पेशेंट्स bilirubin suddenly starts to rise, and secondly the patient comes to you with acute hepatitis, features of acute hepatitis going on to fulminant hepatitis, or for an unknown reason the patient's bilirubin is rising, the ALT has started to rise, फर्दर डीकम्पनसेट करना शुरू हो गए हैं, पेशेंट पहले स्टेबल हो चुके हुए थे। क्योंकि हेपेटाइटिस डी की अब चांसेस हैं कि सुपर इन्फेक्शन होगी, को इन्फेक्शन तो आप रूल आउट कर चुके, तो सुपर इन्फेक्शन में फिर एक एडेड इंसल्ट हो जाती है लिवर को, विच वुड मीन जॉन्डिस, फर्दर डीकम्पनसेशन ऑफ द लिवर,
और fulminant hepatic failure. वरना ऐसे recommended नहीं है कि आप every 6 months hepatitis D rule out कर रहे हो ऐसे patients का, unless and until the clinical indication is there. जी फारूक, मेरे ख्याल में इसमें हम यूजुअली व्हाट वी डू इसके शुरू में तो ज़रूर करते हैं जब हमने पेशेंट को एवेलुएट कर रहे होते हैं, और उसके बाद जिस तरह बुशरा ने कहा कि अगर उसको ही डेवलप्स फ्लेयर प्रोवाइडेड, एक तो ये भी आपको देखना होता है जब भी इस तरह की बात हो कि उसकी ड्रग की कंप्लायंस कैसी है, और अदरवाइज भी जब भी अगर वो जॉन्डिस डेवलप कर लेता है तो वील हैव टू सी कि उसको कोई डेल्टा की कोई सुपर इम्पोज इन्फेक्शन या हुई है कि नहीं। रूटीन में हम डेल्टा चेक नहीं करेंगे अगर पेशेंट अदरवाइज स्टेबल है। और जी एक और सवाल है कि हाउ कम ई एंटीजन एंड ई एंटीबॉडी आर पॉजिटिव आर बोथ पॉजिटिव इन द सेम पेशेंट। जी काशिफ, आपने दोबारा ज्वाइन कर लिया, आप इसको आंसर करना चाहेंगे? इसमें दो ही बातें हैं। पहली बात तो ये थी जैसे आपने कहा कि मे बी के उसमें लिखने में ये चीज हुई हो, बिकॉज जब हम करते हैं जो पेशेंट्स हमारे ई एंटीजन पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं, जब सीरो कन्वर्जन की तरफ जाते हैं तो बीच में एक टाइम आता है जब दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी ई एंटीजन भी पॉजिटिव होता है, एंटीबॉडी भी। लेकिन ये पेशेंट इस वक्त ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, तो मैं खुद भी इस पे हैरान था कि ये मेरी उसमें से आ रहा था कि यूजुअली हम ये चीज नहीं देखते हैं, क्योंकि ई एंटीजन पॉजिटिव पेशेंट्स में सीरो कन्वर्जन अगर हो जाए तो ई एंटीजन नेगेटिव हो जाता है। इस पे आगे अपना कमेंट दें, आपका क्या एक्सपीरियंस बताता है इसमें? मैं तो सबसे पहले देखता हूँ कि रिपोर्ट कहाँ से आ रही है, और हमेशा आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ये बहुत कम होता है। यूजुअली ये होता है कि अगर तो लैब बहुत स्टैंडर्ड की है विद गुड क्वालिटी कंट्रोल, तो आई रिपीट इट आफ्टर 3 to 6 months। और अगर समटाइम्स वी डू गेट रिपोर्ट फ्रॉम सम लोकल लैब जिनके क्वालिटी कंट्रोल जितने अच्छे नहीं होते, तो फिर आई जस्ट गेट इट रिपीटेड स्ट्रेट अवे। आई एग्री कि ये बहुत कम देखा जाता है इस बात में। सर इसको क्लिनिकल नहीं देखते असद साहब? क्लिनिकल जजमेंट नहीं होती जो एथेंटिक लैब पे डिपेंड करते हैं आप लोग? क्लिनिकल जजमेंट में ई एंटीजन और ई एंटीबॉडी की तो नहीं हो सकेगी डॉक्टर जमुना दास। वो तो आपको, ये तो हमारे फॉलो अप के टेस्ट होते हैं जिसमें हम देखते हैं। मैंने ये सवाल इसीलिए किया था कि अगर पेशेंट नॉन सिरोटिक हो तो ई एंटीजन पॉजिटिव पेशेंट में देयर मे बी अ केस कि अगर उसकी ई एंटीजन सीरो कन्वर्जन होती है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जिसका मतलब है कि आपने साल 1.5 साल ट्रीटमेंट किया, फिर ई एंटीजन नेगेटिव हो गया, ई एंटीबॉडी पॉजिटिव होगी, उसके बाद इन अ नॉन सिरोटिक आप कंसोलिडेशन ट्रीटमेंट देंगे 1 साल के लिए, और उसके बाद यू मे थिंक अबाउट स्टॉपिंग द ट्रीटमेंट विद वेरी क्लोज फॉलो अप जो ई एंटीजन सीरो कन्वर्जन। लेकिन ये सिरोटिक पेशेंट है, ये अगर ई एंटीजन पॉजिटिव भी है, we'll have to keep DNA suppressed at all times. So for all practical purposes, we will not make a decision to stop the treatment in any case in this patient. So he will continue treatment for the lifetime, I would say. So ये चीज है। So I have a question about hepatitis C. लेकिन अभी एक हमारा नेक्स्ट केस है, वो हेपेटाइटिस सी से रिलेटेड है, तो उस पे वी विल डिस्कस के एक क्वेश्चन आया, व्हाई डू मोस्ट पीपल रिमेन क्रॉनिकली इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस सी। नाउ वी विल, आई थिंक इट्स बीन आंसर्ड बाय काशिफ आल्सो इन द चैट। जी उजैर, हु इज प्रेजेंटिंग दिस केस? Sir, Dr. Oz will present this case as well. Case 2. Okay. This case has been sent to us from outside. Any Oj, please, आप इस केस को present करें, then we'll discuss it. Yes, sir. A 53-year-old male patient, school teacher by occupation, visited my clinic for a consultation regarding hepatitis C. He presented with complaint of abdominal distension for 2 weeks. On examination, pedal edema was present along with palpable spleen,
2 finger breadths below the left costal margin and signs of free fluid inside the abdomen. He was previously treated twice for hepatitis C, first for soft DECLA for 3 months by a general physician 2 years ago, and then with soft Velpa and weight-based ribavirin for 3 months by a medical specialist 1 year ago. But he didn't achieve SVR. His recent labs were as following. CBC HB was 10.7, WBC 5700, and platelets were 87. LFTs, his bilirubin was 1.11 milligram per deciliter, and ALT was 41. Alkaline phosphatase was 210. AST was 79. PTINR was 18 by 1.3 respectively. Albumin was 2.6. CRET was 0.9, and serum sodium was 129. AFP was 19. His ultrasound abdomen showed increased echogenicity of liver parenchyma noted with reduced liver size, moderate fluid noted at hepatorenal angle suggestive of ascites. Ascitic fluid DR excludes the spontaneous bacterial peritonitis, and HCV RNA PCR is detected. Endoscopy is advised to the patient. His diagnosis was made as a decompensated liver cirrhosis due to HCV. CTP calculated was B7 and MELD was 9. Ascites without SBP and HCV treatment failure case. His ascites was treated successfully with low-dose diuretics and received first dose of vaccine for hepatitis B. The question is, how should we treat this patient? Thank you. Thank you, Oj. This case was actually sent to us. I will summarize it, and then we will take opinion from Dr. Kashif and Dr. Bushra. So basically, a 53 years old school teacher comes with abdominal distension, history of 2 weeks, and he has pedal edema, ascites is positive clinically, and palpable spleen. And he failed antiviral treatment twice, first with soft DECLA for 3 months, which was given by a general practitioner, and then he was treated with soft Velpa with weight-based ribavirin for 3 months, but SVR was not achieved. So investigations में hemoglobin 10.7, platelets 87, albumin is 1, INR is 1.3, bilirubin is 1, INR 1.3, albumin 2.6, creatinine normal, sodium is low, alpha-fetoprotein is 19, which is borderline. In this case, ascites is present on ultrasound with no space-occupying lesion. Ascitic fluid examination did not show any infection. So basically, we have a decompensated liver patient. मैं थोड़ा सा ये जो CTP B7 है, क्योंकि एल्ब्यूमिन 2.6 है और ascites प्रेजेंट है, तो ये 8 में तो जाता है. तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन चाहूँगा. मेल्ट सोडियम का मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, वो तो कैलकुलेटर के बगैर नहीं होगा. और ascites was well controlled. तो मेरे ख्याल में जो क्वेश्चन है, काशिफ, हमने शायद पिछली दफा भी ये थोड़ा सा डिस्कस किया था कि इस मरीज को हम क्या देखें, हमारे पास ऑप्शन क्या है. डीकम्पेंसेटेड सिरोसिस है, ascites है, well controlled, and the patient has failed soft velpatasvir and ribavirin for 3 months in the past. So are we in a position to offer him anything else, or should we continue managing him, and maybe we will thinking about liver transplant for this patient? जी काशिफ, पहले आपसे मैं. जी असद, इसमें अच्छा केस है. इसमें ऐसा हो रहा है हमारे पास, ऐसे जो लोग हमें ट्रीट करते हैं, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं. इसमें वही वाली बात स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहली बात यह है कि कंप्लायंस ऑफ द पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसने ली कि नहीं ली. डीकम्पनसेटेड था, अगर रेबाविरिन भी साथ ली है उसने तो, और फिर भी वो रिलैप्स कर गया, तो जैसे लास्ट लेक्चर में भी बात हो रही थी, डॉक्टर अल्ताफ भी बता रहे थे कि एक्सटेंडेड ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं. सॉफ्ट जो है उसके साथ वेल्पा और रेबाविरिन अगर वो टॉलरेट कर रहा है तो उसे जो है एक्सटेंडेड 6 मंथ्स की ट्रीटमेंट, एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है जो हमारे पास इसमें वो आती है अगर हम देना चाहें. और उस लेकिन साथ मॉनिटरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है उसमें, क्योंकि उन्होंने जैसे लिखा है कि साइटिस कंट्रोल हो गया, सब कुछ है, तो इसको चांस दिया जा सकता है. एक्सटेंडेड ट्रीटमेंट एक ऑप्शन ये हमारे पास बनती है.
सेकंड ऑप्शन में फिर हमारे पास ये है कि कंजर्वेटिवली मैनेज करते जाएं उनकी जो चीज़ें, जैसे उन्होंने कहा कि एंडोस्कोपी करवाएं, अगर वेरिसेस हैं उनको लाइगेट करके बीटा ब्लॉकर्स पे डाल के, और एंड देन आफ्टरवर्ड जो है हम उसे अगर देखेंगे तो फॉलो अप पे रख के, तो ट्रांसप्लांट विल बी द ऑप्शन बिकॉज ही इज जस्ट 53 नाउ। और अगर 2-3 साल में डीकम्पनसेशन की तरफ जाता है, MELD9 के ऊपर ट्रांसप्लांट नॉट रिकमेंडेड इस टाइम पे। जहाँ पर भी जाएगा वो कहेंगे कि अगर वेल कंट्रोल्ड आपका ascites है और बाकी चीज़ें भी ठीक हैं तो ट्रांसप्लांट ही कैन वेट फॉर द ट्रांसप्लांट। अदर देन दैट हमारे पास इस अपने सिनेरियो के अंदर इस वक्त हमारे पास वो खास ऑप्शन रहती नहीं है। मेरा तो अपना ये इस बारे में यही ओपिनियन है कि अदर गो फॉर, अगर बहुत डेस्परेट हैं तो 6 मंथ्स का एक किया जा सकता है। गुड कंपनी सॉफ वेल्पा और उसके साथ साथ रैबाविरिन देख के हम कर सकते हैं। और सेकेंडली अगर नहीं है तो मैनेज करते जाएं और एंड पे जाके जो है उसको, जब यहाँ डीकम्पनसेशन हो रही है या कोई एसीसी का बन रहा हो, तो देन यू हैव टू गो फॉर liver transplant, early liver transplant in these patients. थैंक यू। डॉक्टर बुशरा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आजकल हम एक दवाई का नाम सुनते हैं वो सीवी के नाम से, ये जो जिसमें सफॉस्पवेर और वॉक्सिलैप्रोवेर है और गालबन वेलपेटास्विर है, सॉफ्टवेल वॉक्स। तो क्या अगर ये अफोर्ड करता है, वो सीवी पाकिस्तान में अवेलेबल भी हो जाती है, तो क्या हम इसको वो सीवी के लिए कंसिडर कर सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, इस पेशेंट को है डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस। तो जो ये प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं जिनके एंड में, याद रखने के लिए, जिनके एंड में प्रेविर आता है, PREVIR, ये वाली जो मेडिसिन हैं दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस। इसलिए ये ऑप्शन इस वक्त हमारे इस पेशेंट को अवेलेबल नहीं है, अनलेस एंड अनटिल एट अ लेटर स्टेज ही अंडरगोज अ लिवर ट्रांसप्लांट। फिर उसके बाद 3 months ऑफ सॉफ एंड वॉक्सिलाप्रिविर दी जा सकती है, सॉफ वेल्पा एंड वॉक्सिलाप्रिविर, वो सभी। थैंक यू बुशरा। ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है कि जो प्रोटीएज इनहिबिटर हैं जो कि एंड होते हैं प्रेविर के साथ, वॉक्सिलैप्रोविर या ग्लिकैप्रोविर, जिस तरह ये जीपी एक मेडिसिन है जिसमें पिब्रेंटास्पिर और ग्लिकैप्रोविर है, तो वो बिकॉज ऑफ डीकम्पनसेटेड सिरोटिक वो हम नहीं दे सकते। काशिफ, ये एक और सवाल है चैट में, कैन इंटरफेरॉन हेल्प दिस पेशेंट? Straight away no, because decompensated में तो हम पहले भी नहीं देते थे। प्लेटलेट्स 87,000 है, HP भी कम है उनकी, और रिस्पांस रेट अगर आप देखें तो DAS का बहुत ऊपर है एज कम्पेयर टू इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन जो बहुत अच्छे थे जब हम पेगासिस यूज करते थे तो उस रोपेग्रा या वो करते थे, गुड पेशेंट्स, क्रॉनिक हेपेटाइटिस के पेशेंट 60% से ऊपर उनके रिजल्ट्स नहीं थे। तो उसके लिए अब बिग नो, क्योंकि दुनिया में कहीं पर भी इस वक्त इंटरफेरॉन जो है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस सी ये ऑब्सलीट हो चुके हुए हैं। फॉर बी फिर भी कहीं होता है, डेल्टा के लिए यूज होते हैं, नॉट फॉर हेपेटाइटिस सी। जी उजैर, आप स्टॉप शेयर करेंगे काइंडली? डॉक्टर बुशरा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस पेशेंट को अब फॉलो अप है, वी हैव डिसाइडेड कि हमने इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है एंड वी आर नाउ गोइंग टू फॉलो हिम अप। जिस तरह डॉक्टर काशिफ ने मेंशन किया कि हम इसको करेंगे एंड वील सी हाउ ही डज, और अगर खुदा ना खास्ता वो डीकम्पनसेट करता है देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट लिवर ट्रांसप्लांट। इस वक्त ये लिवर ट्रांसप्लांट का कैंडिडेट नहीं है। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इसको कैसे क्लिनिक में काउंसल करेंगी? हाउ ऑफ्टन विल यू फॉलो हिम अप, और कौन से टेस्ट और किन चीज़ों को आप फॉलो अप में क्लोजली वॉच करना चाहेंगी? जी डॉक्टर बुशरा। जी एक तो सबसे पहले तो डिवाइड किया जाता है ना ऐसे पेशेंट्स का मैनेजमेंट को जनरल मेजर्स में और स्पेसिफिक मेजर्स में। अब जनरल मेजर्स में तो न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इन पेशेंट्स का। हमारे पास आपकी भी ये एक्सपीरियंस होगा कि बहुत ज़्यादा ये हैं जो गरम ठंडा का कॉन्सेप्ट, और उसकी वजह से हमारे पेशेंट्स एंड अप करते हैं विद मैल न्यूट्रिशन, जहाँ के वो अवॉइड की जा सकती है, और वो फिर उनके फर्दर डिटीरियोरेशन ऑफ लिवर फंक्शन को कंट्रीब्यूट करता है।
तो इसलिए वो जो इनके somebody has to sit with them और उनको बताएं कि न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन होनी ज़रूरी है जिसमें प्रोटीन शामिल हो, एग्स हो, मीट हो, मिल्क हो, जो हजम हो जाए वो ज़रूर लें, और इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस कोई नहीं है। दूसरी इनके ज़रूरी ये होता है कि जैसे अब औज ने भी जिक्र किया था कि इस पेशेंट की एंडोस्कोपी प्लान हो रही है, तो वो अच्छी बात है, एंडोस्कोपी हो जाए, वायरसेस के लिए स्क्रीनिंग हो जाए, इफ रिक्वायर्ड बैंड लाइगेशन हो जाए और उसका अकॉर्डिंग टू द ASG गाइडलाइंस फॉलो अप होगा टिल ऑब्लिटरेशन ऑफ द वायरसेस। तीसरी चीज इस पेशेंट को काउंसल करना है कि ये जो एडेड इंसल्ट है उसको अवॉइड करना है। सो हाइजेनिक फूड एंड वाटर, अवॉइड हेपेटाइटिस A एंड E, कोशिश करें कि हेपेटाइटिस B से बच सकें। फर्स्ट डोज औज लगवा चुकी हुई है मेरा ख्याल है इस पेशेंट को हेपेटाइटिस B की वैक्सीन की, तो बाकी दोनों डोजेस प्लीज कंप्लीट कर लें और भूलें नहीं उनके बारे में। So added insult, no new medications, not going for हकीम medications, और ये जो जिन तरीकों से हेपेटाइटिस C फैलता है उन सबको अवॉइड करें कि कहीं HIV भी ना हो जाए, क्योंकि वही रूट है HIV हेपेटाइटिस B का स्प्रेड का, और मोर और लेस ओवरलैप है विद हेपेटाइटिस C। बाकी तो जो स्पेसिफिक मेजर्स हैं वो इस केस में तो वही हैं, जैसे प्रोफेसर काशिफ ने कहा कि हेपेटाइटिस C को हम ट्रीट करना चाहेंगे, 6 मंथ्स के लिए ट्रीटमेंट दी जा सकती है इस केस में, टिल हम ट्रांसप्लांट तो अभी फिलहाल एडवाइज नहीं कर रहे। और फॉलोअप में ये चीज़ हमें भी समझनी है और पेशेंट को भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझानी है दैट द रिस्क ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इज देयर, स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ ongoing hepatitis C that has been so difficult to treat. तो अल्फा फीटोप्रोटीन एंड एन अल्ट्रासाउंड कॉस्ट इफेक्टिव तो एवरी 6 मंथ्स ही है, एंड जो अल्ट्रासाउंड इट हैज टू बी डन बाय एन एक्सपीरियंस्ड सोनोलॉजिस्ट, और अल्फा फीटोप्रोटीन टू स्क्रीन। यूजुअली ऐसे पेशेंट्स 3 to 6 मंथ्स पे अगर फॉलो अप पे आ जाएं, 3 मंथ्स पे आप वैसे लिवर फंक्शंस असेस कर लें और 6 मंथ्स पे अल्ट्रासाउंड एंड अल्फा फीटोप्रोटीन प्लस कैलकुलेशन ऑफ देयर मेल्ड एंड चाइल्ड क्लास, तो ये ठीक होता है। 6 मंथ्स के लिए बिल्कुल सिरोटिक पेशेंट को नहीं भेजा जा सकता, 3 मंथ्स पे बुला लें, स्टेबल सिरोटिक की बात मैं कर रही। तो मेरा ख्याल से thank you Bushra. I'll have one question for Kashif and then we will take your questions also. हमारे पास अभी 10-15 मिनट होंगे। काशिफ, इसका अल्फा फीटोप्रोटीन 19 है, यूजुअली नॉर्मल आपको पता है 10 से कम होता है, तो 19 के अल्फा फीटोप्रोटीन पर आप वरी करेंगे कि आप कहेंगे चलो मैं इसको नज़र में रखता हूँ? आप हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या इस पे CT स्कैन आप एडवाइस करेंगे कि आप वेट करेंगे? जी काशिफ। ये इतना जो अल्फा फीटोप्रोटीन रेज है इससे घबराने की जरूरत नहीं होती है। बेसिकली देखें जो हेपेटोसाइट्स हैं खुद भी जनरेट कर रहे होती हैं, खास रीजनरेशन हो तो सम टाइम अल्फा फीटो इतना रेज हो जाता है। यूजुअली जो अल्फा फीटोप्रोटीन है जिसमें हम परेशान होते हैं वो अगर होगा मोर देन 100 हो जाए, 3 फिगर्स में चला जाए तो देन वी कंसिडर इट सिग्निफिकेंट। उसके अगेंस्ट 20 है, 25 है, 30 है, तो उसको हम मॉनिटर जरूर कर सकते हैं कि जी हम इसको देख लें। अगर जैसे डॉक्टर बुशरा ने कहा कि अच्छा रेडियोलॉजिस्ट है उसके थ्रू अगर हम करवा रहे हैं तो उसमें यह है कि हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि हम इसको फिर दोबारा चेक करके देखें। अगर रेजिंग इसमें जो ट्रेंड आता है तो देन वन हैज टू गो फॉर CT स्कैन इन दिस पेशेंट। लेकिन इसके ऊपर पर्सनली अगर अच्छी अल्ट्रासाउंड हुई है और पेशेंट के ये सारे रिजल्ट्स आए तो I will not go for a CT scan at this stage. I may go for a CT scan when I see कि there are regenerating nodules, patient की थोड़ी सी बिलोरुबिन बढ़ना शुरू हो गई है, रिस्पांस नहीं आ रहा, और तो फिर किया जा सकता है, या प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द अल्फा फीटोप्रोटीन। तो आपके सवाल का जवाब है कि इस अल्फा फीटोप्रोटीन पे मैं अपने तमाम जो है प्राइमरी केयर फिजिशियन को कहूँगा कि इतनी जल्दी ना घबराएं। यूजुअली हम देखते हैं कि वो जैसे ही 5 या 7 हुआ तो उन्होंने भेज दिया कि जी ये हो गया। इतना इसकी वो जो है, एक तो ये है कि ये इतना सेंसिटिव नहीं है उस बारे में। जो इसकी स्क्रीनिंग होती है उसमें बड़ा डिबेटेबल है कि अल्फा फीटो बार बार करना भी चाहिए कि नहीं। उसमें CT स्कैन इज अ गुड ऑप्शन अगर जब भी किया जाए, और या अच्छी जैसे डॉक्टर बुशरा ने कहा कि अल्ट्रासाउंड हुई हो तो वो हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल होती है। थर्ड थिंग इज कि LFTs का पैटर्न,
अल्कलाइन फॉस्फेटेज ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, गामा जीटी बढ़ना शुरू हो जाता है, तो फिर थिंक अबाउट सम एसओएल लिवर, ये इसको कहीं वो तो नहीं आ रहा, देन वन कैन कंसिडर, फिर इसको कंसिडर किया जा सकता है कि वो सारी चीजें बढ़ रही हैं तो साथ इससे भी जो है साथ लिया जाए इसमें। थैंक यू काशिफ, आई टोटली एग्री विद यू कि आपको इतने अल्फा फीटोप्रोटीन पे घबराना नहीं चाहिए। और एक और चीज़ जो है कि अगर आपको सिरोटिक पेशेंट में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस मिल जाए या कोई इस तरह की चीज़, जिस तरह बास का कमेंट आया होता है कि पोर्टल वेन में थ्रोम्बस है, तो प्लीज़ डू कंसिडर कि देयर मे बी समथिंग एल्स गोइंग ऑन। एंड बुशरा ने और डॉक्टर काशिफ ने दोनों ने बहुत अच्छा मेंशन किया कि आपका जो सोनोलॉजिस्ट है that he has to be very very good, और उसको आपको इतना सेंसिटाइज करना पड़ता है कि मैं ये आमतौर पर लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ कि रेफरिंग डॉक्टर का, चाहे वो जीपी है या कंसल्टेंट है, उसका इतना टेरर होना चाहिए सोनोलॉजिस्ट के ऊपर कि उसको पता हो कि मैं इस बंदे के भेजे हुए मरीज पे कोई भी नोड्यूल मिस नहीं कर सकता। Thank you. We are open to questions. We have two very interesting cases. Thank you very much. I would really request and love कि आप हमें अपने cases भेजें, जैसे भी हैं, complete हैं, incomplete हैं, थोड़ा बहुत हम आपसे पूछ लेते हैं, and we are more than happy to present these for you. लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर ये present भी आप लोग खुद करें। There is a question कि what is the recommendation on boosters and titers with hepatitis for healthcare professional? बुशरा, ये आपने हमें पढ़ाया हुआ है तो मैं आप पे ये क्वेश्चन लेके जाऊंगा। जी, जो रिकमेंडेशन है बूस्टर डोज की, वो हेपेटाइटिस बी के लिए 5 इयर्स के ऊपर रेकमेंडेड तो है कि दी जाए, लेकिन उससे पहले बेहतर होता है कि एंटी एचबीएस लेवल्स चेक कर ली जाएं, क्योंकि अगर रिस्पॉन्ड किया ही नहीं है उस मेडिकल हेल्थ वर्कर ने, तो बूस्टर डोज की बजाय वैक्सीनेशन का पूरा शेड्यूल ही रिपीट किया जाएगा। सो इसलिए अगर 10 से कम है तो द पर्सन हैज नॉट रिस्पॉन्डेड टू द वैक्सीनेशन, तो रिपीट करें पूरे का पूरा शेड्यूल। और अगर 100 है तो बूस्टर डोज दे दें, अगर मोर देन 100 है तो फिर बूस्टर की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर करवा लें। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वैसे भी अच्छा होता है टू नो व्हाट देयर रिस्पॉन्स टू इनिशियल वैक्सीनेशन वाज, और उस हिसाब से फिर बूस्टर डोज या रिपीट वैक्सीनेशन एडवाइस की जाती है। बुशरा, आप कितने, हाउ ऑफ्टन डू यू रिकमेंड कि हेल्थ केयर वर्कर अपना एंटी एचबीएस टाइटर करवाएं? जो सीडीसी है उनकी रिकमेंडेशन तो ये है कि आप वैक्सीनेशन के बाद रिस्पॉन्स ज़रूर चेक कर लें, और लेकिन एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा, और अगर रिपीट आपको वैक्सीनेशन करनी पड़ी है तो उसके बाद दोबारा से रिस्पॉन्स देख लें। और उसके अलावा वो रेकमेंड ये करते हैं कि आपने चेक उस वक्त करना है अगर पेशेंट को एक्सपोजर हो गया है, कोई नीडल स्टिक इंजरी हुई है, म्यूकोजल एक्सपोजर हो गया है, या प्रीवियसली अननोन था उसका रिस्पॉन्स टू वैक्सीनेशन। उसके अलावा नहीं, कोई फ्रीक्वेंसी ऐसे डिफाइन नहीं है कि एवरी 2 इयर्स या एवरी 5 इयर्स चेक होना चाहिए। ओके, डॉक्टर फारूक वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन और अ कमेंट। जी फारूक, प्लीज गो अहेड। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक पेशेंट है जो कि हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट ले रहा है फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, और वो रिसीव कर रहा है सॉफ और डेक्ला रिजीम विदाउट रिबाविरिन। कंपनसेटरी सिरोसिस है, और जिस तरह डॉक्टर अल्ताफ ने बताया था कि 1/3 का रूल्स है हमारे पास, 1/3 इम्प्रूव कर जाते हैं, डिकम्पनसेट करते हैं और सेम रहते हैं, तो वो फिर उन 1/3 में था कि जो हेमेटाइमिसिस के साथ प्रेजेंट कर गया। तो इस सिचुएशन में हमें अब फर्दर क्या करना चाहिए? एक तो उनकी बैंड लाइगेशन हो गई, अब नेक्स्ट स्टेप हमें इस तरह के केसेस में जिसमें उसने डिकम्पनसेट कर लिया, क्या हमें सॉफ्ट डेक्ला रिजीम कंटिन्यू करनी चाहिए? क्या इसी तरह सेम चलनी चाहिए? क्या विद रिबाविरिन करनी चाहिए? क्या हमें वेल्पा पे शिफ्ट होना चाहिए? इसके बारे में क्या करें? जी काशिफ, आप कुछ इसमें? जी हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है डॉक्टर फारूक का। बेसिकली ये हमारे साथ हो रहा है कि पेशेंट्स जो सॉफ्ट एक्ला पे हैं, बेसिक वो पास ऑफ सम टाइम दे प्रेजेंट विद अपर जीआई ब्लीड एंड वी जस्ट मैनेज दिस पेशेंट्स कंजर्वेटिवली और बाय डूइंग द एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन, उसके बाद ठीक हो जाता है।
और इसमें ये है कि अगर उसकी डीकम्पनसेशन ज़्यादा नहीं हुई है एंड पेशेंट जो है उसमें वो चाइल्ड ए या चाइल्ड बी अर्ली बी में होता है, तो वन कैन कंटिन्यू विद द ट्रीटमेंट। हमने जो देखा है ज़्यादा प्रॉब्लम जब देखे हैं जो ये दवाइयाँ तंग करती हैं उन्हें, वो डीकम्पनसेटेड सिरोसिस में करती हैं। लेकिन चाइल्ड ए चाइल्ड अर्ली चाइल्ड बी के अंदर हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और करना चाहिए कि ताकि उसका अगर एसवीआर अचीव हो जाता है तो सिरोसिस तो हो गया, लेकिन फिर भी जैसे डॉक्टर असद ने पहले भी कहा कि वो उसकी अगर नेगेटिव है तो उसकी प्रोग्रेशन थोड़ी स्लो हो जाएगी, सी पॉजिटिव है प्रोग्रेशन तेज है, एचसीसी की तरफ भी वो जाएगा। तो रिकमेंडेशंस आर कि अगर पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाता है, जीआई ब्लीड इज अ डिफरेंट थिंग, समटाइम पेशेंट को थोड़ी सी डीकम्पनसेशन होती है और जब आप उसको रेसिसिटेट कर लेते हैं तो उसका एसाइटिस वगैरह डिसअपीयर हो जाता है इवन विदाउट डायूरेटिक्स। और यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर एक दफ़ा डायूरेटिक्स किसी को एसाइटिस हो गया तो आपने डायूरेटिक स्टार्ट किया तो आप उसको ऑब्जर्व करें कि कब मैंने इसको रोक के देखना है कि इसको दोबारा डीकम्पनसेशन होती है कि नहीं। हमारे पेशेंट्स में यही है कि जब एक दफ़ा डायूरेटिक शुरू है तो वो बंद ही नहीं करने, पेशेंट उससे वीक होता है। आपके सवाल का जवाब ये है कि यस, अगर तो पेशेंट टॉलरेट कर रहा है, उसके स्कोर्स अच्छे हैं, तो कंटिन्यू विद द ट्रीटमेंट। थैंक यू। और काशिफ, एक उन्होंने मेंशन किया था कि अगर मिडवे इस तरह हुआ तो हम रिबाविरिन ऐड कर दें प्रोवाइडेड ही टॉलरेट्स, अगर उसने पहले नहीं ली। अब देखें, अगर तो वो डीकम्पनसेटेड था या सिरोटिक था तो पहले तो रेबाविरिन स्टार्ट में देनी चाहिए थी। अगर किसी वजह से नहीं दी गई है तो मेरा नहीं ख्याल कि अब वो टॉलरेट करेगा, बिकॉज उसमें प्रॉब्लम जो है लो हीमोग्लोबिन की आती है। अगर उसकी हीमोग्लोबिन ठीक है और उसको नहीं होती तो रेबाविरिन शुड बी गिवन विद दिस। वो आपको स्टार्ट में भी करना है और अगर यहाँ पर कहीं हो जाता है तो आपको दे सकते हैं अगर वो टॉलरेट करता है। लो डोज का जैसे कंसेप्ट है तो आप लो डोज से स्टार्ट कर लें टू बी ऑन द सेफ साइड। 600 मिलीग्राम से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। उससे ये है कि एडिड इन उसका एडवांटेज होता है रेबाविरिन का। ये हमारे यहाँ पे हमने ये देखा है कि रेबाविरिन का रोल अभी तक खत्म नहीं हुआ हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट में। थैंक यू। डॉक्टर बुशरा, देयर इज अ क्वेश्चन यू पार्टली टच्ड एक्चुअली, तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा फ्रॉम वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स कि कैन यू प्लीज समराइज डाइटरी काउंसलिंग फॉर अ पेशेंट with hepatitis B and C with and without cirrhosis, plus regarding how much salt and water restriction is recommended. ये मैं आपका आधा कर देता हूँ कि विदाउट सिरोसिस कोई डाइटरी वो नहीं है, घर का बना साफ सुथरा ताज़ा खाना, ये स्टैंडर्ड जुमला है, तो इसको आप याद रखें। तो कोई बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी, कोई उस बेचारे मरीज के कोई आप एम्बार्गो मत लगाएं। तो सिरोसिस के मरीज में बुशरा आप काइंडली जी जी, जो आपने सेंटेंस स्टैंडर्ड वाला बताया उसमें मैं एक सेंटेंस ऐड कर देती हूँ, घर का पका हुआ ताज़ा खाना और पानी उबाल के ठंडा करके। तो उससे फिर फायदा ये होता है कि जो एडिशनल हमारे फीको ओरल ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए एंड ई, उनसे बचत हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कोई शक नहीं है सिरोटिक पेशेंट्स, जैसे मैंने कहा था कि हमारे यहाँ बहुत वो दलिए और खिचड़ी पर ही चल रहे होते हैं, तो इंसिस्ट करें कि वो एक बैलेंस्ड डाइट खाएं, बैलेंस्ड डाइट लें जिसमें एनिमल प्रोटीन शामिल होनी चाहिए है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शामिल होने चाहिए, एग्स एंड मिल्क होना चाहिए। ये अलबत्ता ज़रूर है कि जब पेशेंट को अब तो बल्कि जब पेशेंट एनकेफेलोपैथी में है उस वक्त भी एनिमल प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट करने की कोई रिकमेंडेशन अब ईज़ल की तरफ से नहीं आती। और ये ज़रूर है कि जब डीकम्पनसेटेड सिरोटिक है तो उसका मतलब यह है द पेशेंट मोस्ट लाइकली हैज़ एसाइटीज़, और एसाइटीज़ में क्लियर कट है कि सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट होनी चाहिए। अब सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट क्या होती है? हमारे पेशेंट्स बिल्कुल नमक खाना छोड़ देते हैं, इस तरह नहीं है। 2 ग्राम्स ऑफ टेबल सॉल्ट यानी 88 मिलीमोल्स ऑफ सोडियम ले सकते हैं, जो कि आधा चाय का चमचा 24 घंटों में नमक है। अब आधा चाय का चमचा का मतलब ये है कि वो बिल्कुल चुटकी भर खाना उसको एडिबल करने के लिए सालन में डाल सकते हैं। अगर फिर भी फीका लगे, विनेगर ऑप्शन है, लेमन जूस ऑप्शन है, वो उसको फ्लेवर ऐड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट है वो उन पेशेंट्स के लिए है जिनको एसाइटीज है। जिन लोगों का सोडियम लेस दैन 125
चला जाए, जो कि सिरोटिक पेशेंट की हाइपोनेट्रीमिया की डेफिनेशन है, तो उनको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन पर हमने कहना है, उससे पहले नहीं। हमारे एक वो नी जर्क रिएक्शन होता है कि जी बस पेट में पानी बन गया है, पानी भी कम पीना है, नमक भी नहीं लेना है, द पेशेंट, और हमने पेशेंट को डायूरेटिक्स पर शुरू करवा दिया हुआ होता है, द पेशेंट एंड्स अप विद severe dehydration and encephalopathy, comes back with electrolyte imbalance, dehydration, absolutely dry, dizziness भी हो रही होती है, तो and encephalopathy भी at times, तो वो फिर उसको अवॉइड करने के लिए ये ज़रूरी है कि इस चीज़ को जहन में रखें। सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट कब करना है? व्हेन द पेशेंट हैज़ decompensated cirrhosis but the sodium is normal, एंड फ्लूइड एंड सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन उस वक्त है जब सोडियम लेस दैन 125 हो जाए, दैट इज हाइपोनेट्रीमिया हो रहा हो पेशेंट को। Other than that, the patient should be on a good protein diet, a balanced diet containing all components of food. Thank you. Thank you, Dr. Bushra. I think, is there any other question or comment? सर इसमें मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, जैसे डॉक्टर बुशरा ने कहा, इस वक्त हमें ये एक चीज़ जानना चाहिए, हमें वन स्टेप अहेड जाना चाहिए कि हम न्यूट्रिशनिस्ट को इसमें लाएं, अगर आपके पास उस पर अप्रोच है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ डॉक्टर के जो इतनी अपनी उसमें बिजी में है कि बताए, क्योंकि हमारे पेशेंट का आप सब एग्री करेंगे, उसने थोड़ी देर के बाद फिर आपसे पूछते हैं, आप सारी रिस्ट्रिक्शंस बताते हैं, सब कुछ करते हैं, तो अगला सवाल ही आता है कि खाना की है, वो फिर वही क्वेश्चन करता है। उसमें ये है कि ये हमें फ्यूचर में करना पड़ेगा कि अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट हो जो उनको बैलेंस डाइट के बारे में बताए। जहां तक डॉक्टर बुशरा ने कहा प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन का, ठीक है, रिकमेंडेशंस नहीं है यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे लोग लैक्टोलोज लेते हैं सिर्फ फॉर द कॉन्स्टिपेशन। उनको समझाना पड़ता है कि लैक्टोलोज और आपने बंद नहीं करना, यही आपकी ट्रीटमेंट है। तो उसकी वजह से हमारे पास जो पेशेंट्स एंड अप होते हैं, जो हॉस्पिटल्स में आते हैं, इनकैफ की मोस्ट लाइकली काज जो होती है ना, आइदर देयर इज इन्फेक्शन और देयर इज कॉन्स्टिपेशन। तो वो चीजें थोड़ी सी बतानी होती हैं। और साल्ट के वाले से बड़ा अच्छा उसने बताया, ये जो पानी हम बंद कर देते हैं हर एक का, ये बिल्कुल उससे जो है ना हमारे पेशेंट खराब होते हैं, इनके रीनल फंक्शंस खराब हो जाते हैं, और हम एंड अप होते हैं इनको कभी इनको जो है सीकेडी भी हो रहा है, कभी हेपेटोरीनल में चले जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हाथ जो है ना हल्का रखें पेशेंट के ऊपर। और जैसे आपने कहा कि जो कंपनसेटेड है, जिसको एसाइटिस नहीं है, खुदा के लिए उसकी उस पर पाबंदियां ना लगाएं, उसे कहीं खाए पिए, बस वही वाली बात है, सफाई का ख्याल रखे, बाजार की चीजें ना खाए जो खराब होती हैं। हमने कोविड में देख लिया, हेपेटाइटिस ए और ई और एंटेरिक हमारे पास हॉस्पिटल्स में आए कोई नहीं है। ये जब से लॉकडाउन खुला है फिर परमानेंट हेपेटिक फेलियर आ रहा है, एक्यूट और क्रॉनिक आ रहा है। तो यही बेसिक चीजें हैं जो बताने वाली हैं। Thank you very much. There is a question about देखें जो वाटर रिस्ट्रिक्शन है, डॉक्टर बुशरा ने उसको जवाब दे ही दिया है चैट में कि वाटर रिस्ट्रिक्शन आपने सिर्फ उसी वक्त करनी है अगर हाइपोनेट्रीमिया है सिरोटिक पेशेंट में, अदरवाइज उसका कोई इतना रोल नहीं है। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम वी विल एंड दिस सेशन। मैं थोड़ा सा अनाउंसमेंट ये करना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीक इन कोलैबोरेशन ये जितने सेशन हैं ये पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेपेटोलॉजी के साथ हो रहे हैं, एंड नेक्स्ट वीक वी हैव a 90-minute session for hepatitis C. ये जो सेशन है इसमें हम पूरा हेपेटाइटिस सी कवर करेंगे, एंड our worthy speakers will be Dr. Zishan, Dr. Bushra and Dr. Yasir Zaidi. Professor Kashif Malik, Professor Javed Iqbal Farooqi and Dr. Farooq Khan from UK will be present as experts, and we'll have Professor Altaf Alam also, जो कि इस हमारे in fact who's our course director for all our ECHO sessions. So this will be a 90-minute session. We plan to give you a certificate of attendance about hepatitis C और CME के पे already हमारा जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो उसके बाद फिर it will be followed by 3 sessions of case-based discussions. एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड, आप ये चीज ज़हन में रखें कि ये सिर्फ हेपेटाइटिस बी और सी के बी के अलावा भी हो सकता है, फैटी लिवर हो सकता है, आपका कोई और केस जो कि जीआई से रिलेटेड है, बिकॉज वी हैव एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, कोई केस है आप हमसे शेयर करें सो दैट वी कैन प्रेजेंट दैट केस फॉर यू, और द बेस्ट थिंग वुड बी कि यू विल बी प्रेजेंटिंग द केस योरसेल्फ। कोई भी तस्वीर आपके पास है किसी केस से मुतालिक,
कोई इन्वेस्टिगेशन आप शेयर करना चाहते हैं, कोई बायोप्सी आप डिस्कस करना चाहते हैं विद रेलिवेंट हिस्ट्री, कोई कैंसर की मैनेजमेंट आप डिस्कस करना चाहते हैं रिलेटेड टू जीआई, तो वी आर मोर देन हैप्पी, क्योंकि इस फोरम को हमने ज़्यादा करना है, क्योंकि और ये वो केसेस हैं जो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड हैं. तो नेक्स्ट वीक वी विल हैव hepatitis C echo. Uzair will be announcing it inshallah tomorrow. And then again, there will be 3 weeks of case-based, and then it will be a hepatitis B echo. वो जो हम 8 सेशंस करते थे, वो हम एक ही सेशन में कवर करेंगे. So thank you very much. Thank you very much, Professor Kashif and Dr. Bushra. I'm very thankful to our team. Uzair is here, Salman is here, Dr. Amna, Kiran, for being with us and being absolutely supportive for these echo sessions, and to all the participants who have joined, I can see across Pakistan for this. Thank you very much. Over to you, Zaid. Thank you very much, sir. Till next time, Allah Hafiz to all of you.